Hello students, in this sessions we are going to learn about hyperconjugations. This is a continuation of general organic chemistry. In today's sessions we are going to start with a hyperconjugation concept, which is lecture 2 of general organic chemistry. So this concept you can find in class 11th unit 12, some basic principle and techniques. In that first concept we have learned about inductive effect, and today's sessions we are going to talk about hyperconjugations. So friends, myself Bakhtiyar Khan, having 6 years of teaching experience and have been guiding students from 2016 onwards. So the student who had done a course under me had made into good colleges of India and abroad, and in this year the student had scored JEE Main 91 percentile, and few students had qualified for NEET exams, and some of them are pursuing MBBS abroad. So with this note, I would like to start a sessions on hyperconjugations. So in today's concept, we are going to learn about hyperconjugations. We are going to learn about hyperconjugations. So let us understand what is hyperconjugations. Hyperconjugations क्या होता है कि ये होता है इंट्रैक्शन. किसका इंट्रैक्शन होता है? इंट्रैक्शन of sigma bond, or we can say CH bonds of an of an adjacent कार्बोकटायन. इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन. इसको रिप्रेजेंट करते हैं C प्लस, और फ्री रेडिकल और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ये, एंड पाई सिस्टम means we are talking about an alkene. In alkyne it is not observed, in alkene. So interaction of sigma bond with an adjacent carbocation with an adjacent carbocation, free radical और pi system. So ये किसका इंटरेक्शन होता है? सिग्मा बॉन्ड का विथ एडजेसेंट फिंगर. So this is called hyperconjugations. इसको हम लोग बोलते हैं hyperconjugations. तो it is developed by a scientist Baker-Nathan. So this concept is developed by Baker-Nathan, and hence it is called by Baker-Nathan, and that's why it is called a Baker-Nathan effect. It is also, this concept is developed by, it is called Baker-Nathan effect. Baker-Nathan effect, और हम लोग कह सकते हैं इसको एक नो बॉन्ड रेजोनेंस, or we can say anchimeric effect or anchimeric effect. ठीक है. तो इंटरेक्शंस किसका हो रहा है? ये यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का, यानी कि CH बॉन्ड विथ एन एडजेसेंट कार्बोकटायन, ठीक है, या फ्री रेडिकल, और या पाई सिस्टम ऑफ एन एल्कीन. दिस इज कॉल्ड hyperconjugations. The concept was developed by Baker-Nathan, and it is also called a Baker-Nathan effect and no bond resonance or anchimeric effect. So for a system to show hyperconjugations, there are two conditions. Conditions क्या है hyperconjugations के लिए? So let us understand those conditions. Conditions for hyperconjugations क्या है? Conditions for hyperconjugations, let us understand those things. Conditions for
हाइपर कंजुगेशन। क्या है हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन? लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें जो कंडीशंस है, इसमें दो कंडीशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिस्टम के पास जो कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन शुड बी sp3, अल्फा कार्बन को sp3 होना पड़ेगा। और दूसरा, दैट अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एटलीस्ट one alpha hydrogen must be present. Hydrogen must be present. तो हमारे सिलेबस में क्या है? हमारा जो हाइपर कंजुगेशन है वो किस में ऑब्जर्व करता है? हमारा कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में, पाई सिस्टम में, अल्कीन में करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं कि कार्बोकेटाइन में कैसे होता है। तो सपोज कीजिए कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में कैसे होता है, फिर उसके बाद हमें चलेंगे पाई सिस्टम पर, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल पर। तो कार्बोकेटाइन में क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल इंटरेक्शंस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन से, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन से जब अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिग्मा एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होता है इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है। जैसे देखिए कि ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, CH2, ये कार्बोकेटाइन है। इसके पास जो कार्बन लगा है, ये जो कार्बन है ये हमारा CH3 है, ठीक है। इसके पास जो कार्बन लगा हुआ है ये हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम के बगल में जो कार्बन है, ये जो बगल में कार्बन है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और हर एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए इसमें इंटरेक्शन कैसे कैसे होता है कि सबसे पहले देखिए कि ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है CH2 प्लस, यहाँ पर देखिए इस कार्बन जो अल्फा कार्बन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंटरेक्शन जो होना चाहिए, इसका इंटरेक्शन किसका? सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। किससे होना चाहिए? कार्बोकेटाइन से होना चाहिए। सबसे पहले जो अल्फा कार्बन है वो sp3 है या नहीं है, चेक कर लेते कि ये sp3 है या नहीं है। तो यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा, चौथा सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है? sp3। तो ये sp3 कार्बन है, ठीक। जब ये sp3 कार्बन है तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरेक्शन कैसे होगा, ये सिग्मा बॉन्ड का, अगर हम लोग इंटरेक्शन का बात करें तो इस सिग्मा बॉन्ड का देखिए कैसे इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस सिग्मा बॉन्ड में एक अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेंगे। जब इसके हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगर हम लोग इसको ब्लू से लेते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा HCH, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H+ हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड निकल गया वहाँ से, है ना। और कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए वो पूरा इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन को H+ के तौर पे यहाँ पर रखेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया। अब क्या होगा? तो ये CH2, अब ये CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है एक दूसरा भी हो सकता है इस तरह से, अगर हम इसको लें, तो ये भी ट्रांसफर हो सकता है इस तरफ। तो इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो यहाँ पर जो है HCH, तो यहाँ पर H+ हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया CH2, ठीक है। ठीक इसी तरह
हम इस इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पर। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बनेगा इस तरह से H प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं, डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इस कार्बोकटायन का, इस जो कार्बोकटायन का जो इंटरमीडिएट आपको दिख रहा है, तो इसमें कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना? एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है। तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका बना। ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास, इस अल्फा कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये इसमें कितना स्ट्रक्चर बना? कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 3 बना, 1 2 और 3। तो 1 2 3 हमारा क्या हो गया? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो गया बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो 1 2 3 क्या हो गया हमारा? इसको हम लोग 1 2 3 को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, या इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो फॉर्मली फिक्स्ड है उस सिस्टम के पास, इस सिस्टम के पास फिक्स्ड है, ठीक है। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है कार्बोकटायन वाला सिस्टम, तो इसके पास ये फिक्स है, ठीक है, फॉर्मली फिक्स्ड है। तो ये जब H प्लस टूट जाता है, जब H प्लस के फॉर्म में रहता है, तो वो वहां से भागता नहीं है, वो इंट्रैक्शन में रहता है उस सिस्टम के, पाई सिस्टम के इंट्रैक्शंस में रहता है, ठीक है। तो H प्लस जो है हमारा क्या, वो फॉर्मली फिक्स्ड रहता है टू द सिस्टम। तो हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि H प्लस जो है, H प्लस आयन इज फॉर्मली फिक्स्ड टू द सिस्टम, सिस्टम से वो फिक्स रहता है, ठीक है, और वो वहां से जाता नहीं है। तो इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसीलिए इट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो वहां से वो हटता नहीं है, वो उसी जगह पर रहता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो ये कार्बोकटायन में 3 अल्फा हाइड्रोजन था, 3 अल्फा हाइड्रोजन था, अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन था। तो टोटल नंबर ऑफ कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बना? अगर हम लोग कंजुगेटिव स्ट्रक्चर का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बना? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितना बना? कितना बना? इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना अल्फा हाइड्रोजन था उतना हमारा कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, हाइपर कंजुगेटिव हाइपर कंजुगेटिव structures are represented by double headed arrow, डबल हेडेड एरो। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन,
तो इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोगों को और आइडिया मिल जाएगा कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितना होता है। फिर स्टेबिलिटीज का क्वेश्चन बनाएंगे। ये समझिए कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर आपको जब और एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा तो मिक्स क्वेश्चन कराया जाएगा, तो मिक्स क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो है हम लोग इन सिलोज में कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, क्या क्या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स है, कितना बनेगा, वो क्वेश्चन हम लोगों को बताना है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये है, इस तरह का है, यहाँ पर कार्बोकैटायन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कितना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स है। दूसरा एक सपोज कीजिए मेरे पास ये सवाल है। ठीक है, एक यहाँ पर है, सपोज कीजिए हमारे पास सी है हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पर प्लस है, एक हमारे पास डी है, एक इस तरह का कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास ये, पहले इतने सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस सवाल को पॉज करके बनाइए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सिस्टम क्या है, हमारे पास कार्बोकैटायन इतना है, इससे अल्फा कार्बन कितना है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन के पास कितना होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर, इस कार्बन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन का होगा इस तरह से। तो ये हमारा 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा इसका, 8 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर को हम लोग HCS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। इसमें कितना हो जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 HCS हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे पास ये सिस्टम है, कार्बोकैटायन का ये सिस्टम है। इससे कितना कार्बन अटैच, हाइड्रोजन अटैच है, 1 अटैच है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। इसके पास कितना हाइड्रोजन अटैच है, 1 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कितना बनेगा, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स 1 बनेगा, 1 HCS बनेगा। ठीक उसी तरह हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, सब sp3 है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 2 4 3 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा हमारे पास। हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल को लगाइए। जैसे कि हमारे पास ये सवाल है, ये हमारे पास कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, इसको हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, इसमें हमारे पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, अगर हम सिस्टम से चलें, ये हमारा कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन ये अल्फा कार्बन sp3 नहीं है, ये sp2 है। कितना बॉन्ड है यहाँ पर, 1 2 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो 3 हुआ, तो 3 sp2 हो गया। हम लोगों को सिग्मा बॉन्ड लेते हैं sp2 के लिए, 3 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक हाइड्रोजन के साथ हुआ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है ये। तो 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हो गया। ठीक है, तो ये sp2 जो कार्बन है हमारे पास, ये हमारा हाइपर कंजुगेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो हमारे पास ये कितना होगा,
3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये था कार्बोकैटायन का कहानी। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सिस्टम की तरफ जिसका नाम है अल्कीन। अल्कीन की तरफ चलते हैं। अल्कीन, तो इन अल्कीन चलते हैं। इन कार्बोकैटायन देख लिया हम लोगों ने, अब अल्कीन पर चलते हैं। तो अल्कीन पे कैसे होता है वो देखते हैं। अल्कीन से पहले एक हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या, एक क्वेश्चन है कार्बोकैटायन से रिलेटेड। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन से अटैच 3 कार्बन है इस तरह से, CH3, ये CH3 और एक ये CH3। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास कार्बोकैटायन है जिसके पास 2 CH3 अटैच है, CH3 यहाँ पर, CH3। फिर उसी तरह हमारे पास यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, अब हमारे पास फिर इसी तरह से ये CH2 है हमारे पास, यहाँ पर CH3 अटैच्ड है। ठीक है, एक हमारे पास है CH3। अगर हमसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस्ड ऑन हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ नोटिस कीजिए कि ये सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम से अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, 3, 6 और 3, 9, तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक उसी तरह ये हमारा सिस्टम है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके पास कितना है, 3, 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला है, सबसे ज़्यादा स्टेबल 9 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 6, फिर 3, फिर 0। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर निकालें तो ये हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ, इसको 1 लेते हैं, अगर इसको 2 लेते हैं, इसको 3 और इसको 4 लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे लिखेंगे, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है हमारे पास। ठीक, अब दूसरी तरफ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अल्कीन। अल्कीन में देखिए क्या करना है हम लोग को। तो अल्कीन को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अल्कीन, इन अल्कीन में क्या हो रहा है। तो अल्कीन देखिए हमारे पास जैसे ये सिस्टम है, ये जैसे हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास सिस्टम है CH डबल बॉन्ड CH2, ये सिस्टम है हमारे पास अल्कीन का। और इस सिस्टम से अटैच अगर हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये क्या है हमारे पास, ये सिस्टम है हमारा, ठीक है, अल्कीन सिस्टम जो हाइपर कंजुगेशन शो करने वाला है। तो ये सिस्टम है, ये टोटल अल्कीन जो डबल बॉन्ड जो सिस्टम बना रहा है, उस सिस्टम के बगल में जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। क्या ये अल्फा कार्बन sp3 है, लेट अस चेक कि इसके पास अल्फा sp3 है या नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। जब इस कार्बन को हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे CH। अगर हम इसका सिग्मा काउंट करने के लिए बैठे हैं तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 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 सिग्मा। तो 4 सिग्मा मीन्स sp3, तो ये sp3 है, तो ये क्या है, sp3 कार्बन है। तो ये हमारा पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3। और दूसरा कंडीशन कि इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन। सो it will show hyperconjugation, तो ये हाइपरकंजुगेशन आपका दिखाएगा, इंटरेक्शन दिखाएगा, ठीक है, इट विल शो हाइपरकंजुगेशन, ठीक है, इट विल शो हाइपरकंजुगेशन। आइए कुछ क्वेश्चन समझते हैं, इसको क्वेश्चन से कैसे निकाला जाता है हाइपरकंजुगेशन, वो देखते हैं। तो यहाँ पर भी कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो होगा टोटल नंबर ऑफ हाइपर
conjugative structure hyperconjugative structure is equal to number of अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों को CH का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसी तरह से लिखना है। तो ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से करना है। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, और ये किसी सिस्टम से अटैच्ड है CH+C2, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम है। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड होगा। ये CH बॉन्ड, ये देख रहे हैं, ये CH बॉन्ड, इसका इंटरेक्शन होगा। सबसे पहले कोई एक भी ले लो, कोई भी एक में से ले लो, इस 3 अल्फा हाइड्रोजन में से कोई एक ले लो। तो सबसे पहले इसका इंटरेक्शन होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं तो ये क्या होगा, HC, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो उसको तो वहाँ शिफ्ट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH2, C डबल बॉन्ड CH, CH2-, इसीलिए इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+, ये H+ फॉर्मली फिक्स टू द सिस्टम होगा, ये यहाँ से हटेगा नहीं, और ये इंटरेक्शन करता रहेगा सिस्टम के साथ। जो सिस्टम था हमारा अल्कीन का, उसके साथ इंटरेक्शन करता रहेगा। ये पहला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना। अगर हम लोग दूसरा इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, HC, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई एक बॉन्ड को शिफ्ट कीजिए, बॉन्ड शिफ्टिंग का एक ही दिखा रहे हैं। तो H ये हो गया, दूसरा हमारे पास H यहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड C, CH2- हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो एक यहाँ पर से शिफ्ट करेगा। जब ये शिफ्ट करेगा तो ये इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH, H, यहाँ से H लिखिए, डबल बॉन्ड CH, CH2-, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर हुआ, ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ, और ये तीसरा स्ट्रक्चर हुआ। तो हम लोगों ने क्या लिखा था कि जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हमारा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों के इन अकॉर्डेंस विद दैट हम लोग को मिल गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चन से और आइडिया मिलेगा हम लोगों को। चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है, CH3, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है, CH3। तो ये तो हमारे पास सिस्टम, ये हमारे पास हो गया। तो ये तो हमारे पास सिस्टम हो गया, ये सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम से अटैच जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा, तो यहाँ पर 3 अल्फा H और यहाँ पर 3 अल्फा H, तो 6 अल्फा H है हमारे पास। तो 6HCH बनेगा, 6HCH हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक, उसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है कि यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये है सिस्टम, ये सिस्टम है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये तो हमारा सिस्टम हो गया, ये तो हमारा सिस्टम हो गया। सिस्टम से अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या बनाएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा। ठीक, उसी तरह हमारे पास दूसरा सवाल है। सपोज कीजिए कि हमारे पास सवाल ये है, ये हमारे पास सवाल है इस तरह से, हमारे पास यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम्स को देखेंगे। ये सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम से अटैच जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है।
ठीक है, सब sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। अब इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ है, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग, और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा, 3, 2, 5, 2, 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो 7 HCS बनेगा, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन देख लीजिए, तो देखिए अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एल्कीन है हमारे पास, यहाँ पर से 2 इससे सिस्टम निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सिस्टम है, तो सिस्टम से अटैच जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, तो 10 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर टोटल, तो यानी कि 10 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशंस। इसमें हम लोगों को हाइपर कंजुगेशंस का ऑर्डर बनाना है, ठीक है, इन अल्कीन सिस्टम, इन पाई सिस्टम। इसमें देखिए क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये CH3 है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, फिर दूसरा हमारे पास क्या है, CH3 CH2, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, फिर ये हमारे पास दूसरा वाला है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और तीसरा हमारे पास है यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये सिस्टम से अटैच CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम अटैच्ड है। इसमें से पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशंस क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिस्टम है हमारे पास, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास सिस्टम है, इसके बाद कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कार्बन को देखना है, ये कार्बन को देखना है। तो ये हमारे पास सिस्टम है, इस कार्बन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2, तो 4, 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक ये अल्फा हाइड्रोजन, एक ये अल्फा हाइड्रोजन, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन के पास कितना, एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन इसके पास मौजूद है, तो ये एक 1 अल्फा H हो गया। अब ये सिस्टम है हमारे पास, ये सिस्टम के पास क्या है, 0 अल्फा H है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। इस तरह से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अल्फा H। जिसका नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका अल्फा H कम होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये था हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। अब चलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल में, देखते हैं कि फ्री रेडिकल में किस तरह से हाइपर कंजुगेशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास तीसरा जो है, जो हाइपर कंजुगेशन शो करता है, उसका नाम है फ्री रेडिकल। तो इन फ्री रेडिकल, अब चेक करते हैं कि फ्री रेडिकल शो करता है कि नहीं हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम लेते हैं जिसमें हाइपर कंजुगेशन शो करता है। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास सिस्टम है CH2, इससे अटैच जो कार्बन है सपोज कीजिए CH3 है। तो इस कार्बन को चेक करते हैं, इसके ये सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम से अटैच कार्बन को देखते हैं कि ये अल्फा कार्बन है, क्या ये sp3 है, चेक करते हैं ये sp3 है या नहीं। तो ये CH H यहाँ पर CH2, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो 4 सिग्मा मिलके sp3 बना रहा है।
ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन sp3 कार्बन है और ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है और ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन भी है, तो ये क्या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? यस, इट विल शो हाइपर कंजुगेशन, इट विल शो हाइपर कंजुगेशन, इट विल शो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन अल्कीन सिस्टम में और इन कार्बोकैटायन सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया था? हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग किया था। लेकिन इन फ्री रेडिकल वी हैव टू मेक होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। इन फ्री रेडिकल we have to break homolytically. In free radical homolytic bond breaking होगा, homolytic bond breaking होगा जो कि फ्री रेडिकल बनाएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड इंटरैक्शन, बॉन्ड इंटरैक्शंस। तो इसको कैसे ब्रेक करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें जैसे कि हमारे पास एक फ्री रेडिकल है, तो ये देखिए कि हमारे पास एक फ्री रेडिकल है, इसका स्ट्रक्चर्स हम लोग एक लेते हैं कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल है CH2, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है। तो यहाँ से अटैच जो कार्बन है ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये अल्फा कार्बन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर एक रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एक रेडिकल का फॉर्मेशन। तो पहला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलके क्या बनाएगा? एक बॉन्ड लाइन बनाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है, तो ये बॉन्ड लाइन बनाएगा। तो फाइनली जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो HCH डबल बॉन्ड CH2 होगा और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल मौजूद रहेगा। हम लोग ऐसे भी बॉन्ड ब्रेकिंग कर सकते हैं, यहाँ से होमोलिटिकली कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल। ठीक उसी तरह ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ये पहला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अब दूसरा जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इसके साथ बना देगा, तो ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना। तीसरा हमारे पास कैसे तोड़ सकते हैं इसको? हम लोग इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पर फ्री रेडिकल। तो तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर्स बनेगा वो कैसा बनेगा? तो यहाँ पर हमारा है ये फ्री रेडिकल और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसका बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स के कितना बना? प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा H। तो टोटल नंबर हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H। जितना अल्फा H होगा उतना हमारा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा, ठीक है। इसको अब बॉक्स में करना तो बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हम लोगों को और आइडिया मिलेगा। क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि सपोज कि ये हमारे पास क्वेश्चंस है, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर अल्कीन है, यहाँ पर सपोज कीजिए अल्कीन है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सपोज कीजिए ये है, यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है। तीसरा हमारे पास सपोज कीजिए क्वेश्चन इस तरह का, इस तरह का। चौथा हमारे पास क्वेश्चन अगर सपोज कीजिए ये इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है। सबसे पहला क्वेश्चन फ्री रेडिकल में देखते हैं। तो ये हमारा सिस्टम से अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, लेकिन ये sp2 है। तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास अल्फा कार्बन
अल्फा कार्बन है लेकिन वो sp2 है, इसको हम लोग अल्फा कार्बन नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे। तो ये sp2 कार्बन है और ये sp2 होने के कारण क्या हो रहा है कि ये इसमें 0 अल्फा H है, ठीक है। तो ये इसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगा। ठीक इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक सिस्टम है हमारे पास, ये सिस्टम है, इससे अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस कार्बन के पास कितना है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए कार्बन का 3 बॉन्ड तो बन चुका है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक हाइड्रोजन नहीं बचा, तो ये 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यानी कि 1 HCS बनेगा इसका, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अब ये सिस्टम है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 2 5 तो 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर बनेगा। 7 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक उसी तरह हमारे पास अगर ये सिस्टम है तो ये सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन और यानी कि 4 HCS बनेगा, 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन को समझते हैं। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, चलिए। तो ये था हमारा अल्कीन्स का और फ्री रेडिकल का और हमारे पास कार्बोकैटायन का। तो इस 3 सिस्टम में हमारा शो करता है क्या? हाइपर कंजुगेशन। अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन कार्बोकैटायन में देखिए ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कैसा होता है, किस तरह से ओवरलैपिंग होता है हाइपर कंजुगेशन में इन कार्बोकैटायन में। तो वो देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये कार्बोकैटायन है CH2+ और ये हमारे पास CH3 है। ठीक है, जो कि अल्फा कार्बन है वो sp3 है, sp3 कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए इसका इंट्रैक्शन हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंट्रैक्शन होता है। CH2+ जो है ये क्या होगा, कार्बोकैटायन में क्या होगा, क्योंकि ये डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। ये है वैकेंट p ऑर्बिटल, किसका? कार्बोकैटायन का। ये है कार्बोकैटायन का वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, ये है कार्बोकैटायन का वैकेंट p ऑर्बिटल। इसके इंट्रैक्शंस में क्या आएगा, CH इस सिग्मा बॉन्ड को हम लोग किस तरह से दिखा रहे हैं, इस सिग्मा बॉन्ड को हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, इस तरह से। ये कार्बन का सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, ये H हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास H हो गया। इसको अंदर में भी लिख सकते हैं आप, तो ये अंदर में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी लिख दो। ओ माय गॉड, ठीक है, तो इसको हम लोग अंदर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड का, इसका सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शंस करेगा, इस तरह से इंटरेक्शंस करेगा। ठीक है, तो इसका इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ CH एंड वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन का वैकेंट ऑर्बिटल का इंटरेक्शंस। तो इस तरह से हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है किसी भी ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट होता है हाइपर कंजुगेशन में, इस तरह से इंटरेक्शन वो करता है ड्यूरिंग हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्बन तो sp3 है, देखिए ये कार्बन क्या है, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन हमारा sp3 है
ये sp3 है और यहाँ पे ये s का s ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो sp3 s इंटरेक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, sp3 s इंटरेक्शंस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है sp3 s इंटरेक्शंस, ठीक है। sp3s ऑफ CH बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड किसका बन रहा है, sp3s का, s ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का, और sp3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3s ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ CH एंड वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ C+। तो इस तरह से इसका ओवरलैपिंग होता है, इस तरह से ये हाइपर कंजुगेशन शो करता है, इंटरेक्शन शो करता है। तो ठीक इसी तरह ये अल्कीन में कैसे शो करता है वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो अल्कीन में किस तरह से करता है, फिर फ्री रेडिकल में किस तरह से करता है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इन फ्री रेडिकल में किस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। तो इन फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया CH2, ये फ्री रेडिकल, और CH3, इसको हम लोग खोल के लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए CH2 का वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर ये CH3 है, CH, और यहाँ पर ये इंटरेक्शन इस तरह से किसके किसके बीच में हो रहा है, हाइड्रोजन और ये sp3 कार्बन, ये sp3 है, sp3s इंटरेक्शंस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसका इंटरेक्शंस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है sp3s इंटरेक्शंस और CH बॉन्ड विद वैकेंट p ऑर्बिटल, इस तरह से वैकेंट p ऑर्बिटल इस तरह से इंटरेक्शन शो करता है, ठीक है। इस तरह से इंटरेक्शन शो करता है और हमारा हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल शो करता है, इस तरह से हाइपर कंजुगेशन। तो ये किसका किसका इंटरेक्शन शो कर रहा है, इंटरेक्शन ऑफ sp3s एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ sp3s ऑफ CH बॉन्ड एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ फ्री रेडिकल, interaction of sp3s of CH bond and half filled p orbital of free radical। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग अल्कीन में देखते हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे होता है इन अल्कीन। अल्कीन में देखिए किस तरह से ओवरलैपिंग होता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखिए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे होता है। तो हम बनाते हैं इसका ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर देखिए ये C है, ये C है, इससे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन इसका कैसे हो रहा है पाई बॉन्ड के साथ, वो देखिए ये C है, इसका पाई बॉन्ड के साथ इस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये तो इसके साथ पाई बॉन्ड इंटरेक्शन है, ये तो पाई बॉन्ड इंटरेक्शन है, ये है पाई बॉन्ड इंटरेक्शंस, अल्कीन का पाई बॉन्ड इंटरेक्शन। और यहाँ पर जो है हमारे पास CH और यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ये H है, ये इंटरेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर एक जो हमारे पास अल्कीन है, उस अल्कीन सिस्टम के पास क्या होता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है। MOT अगर हम लोग पढ़ेंगे तो MOT में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हमारा पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशंस में, ठीक है। तो
इसमें क्या हो रहा है कि एंटी बॉन्डिंग जो पाई ऑर्बिटल्स है, एंटी बॉन्डिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो पार्टिसिपेट करता है हमारा इसमें हाइपर कंजुगेशंस में। तो अगर हम लोग एंटी बॉन्डिंग का दिखाना चाहें तो ये इंट्रैक्शंस कैसे, ये एंटी बॉन्डिंग अगर हम दिखा रहे हैं इस तरह से, तो ये इस तरह से दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंट्रैक्शन ऐसे शो कर रहा है, इसके साथ ये इंट्रैक्शन शो कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो जो भी इंट्रैक्शन यहाँ पर शो कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स से, एंटी बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन से। तो sp3s का इंट्रैक्शन हो रहा है, sp3s ऑफ CH बॉन्ड का इंट्रैक्शन किसके साथ हो रहा है, ठीक है, इंट्रैक्शन होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल्स ऑफ अल्कीन सिस्टम, अल्कीन सिस्टम में, ठीक है। अल्कीन सिस्टम में क्या हो रहा है कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारा हाइपर कंजुगेशंस में इंटरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। पाई इसका अप टू पाई जो है मोटिव में वो फिल्ड अप हो जाता है, और एंटी बॉन्डिंग पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अनफिल्ड होता है। जो अनफिल्ड ऑर्बिटल होता है उसका CH बॉन्ड के साथ जो कार्बन हाइड्रोजन जो sp3 शो कर रहा है उसके साथ वो इंटरेक्शन शो करता है, किसमें, एल्कीन सिस्टम में। इसको याद रखना है कि इसमें एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन सिस्टम पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिग्मा और पाई स्टार का ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं सिग्मा, इसमें हम कह सकते हैं कि सिग्मा और हाफ पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है, हाफ पी ऑर्बिटल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हाइपर कंजुगेशन शो करता है कार्बोकैटायन में और फ्री रेडिकल में और हमारा अल्कीन सिस्टम में। तो अल्कीन सिस्टम में पाई स्टार होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है हाइपर कंजुगेशंस में, तो वो खाली स्थान देता है एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, और जो कि सिग्मा बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन शो करता है। तो इसी कारण से तीनों सिस्टम में हमारा क्या होता है कि हाइपर कंजुगेशन शो करता है। अल्काइन जो है वो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्काइन जैसे हो गया, अल्काइन हो गया, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, डज नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशंस, डज नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशंस, डज नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाई एनर्जी ऑफ द पाई सिस्टम हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ पाई ऑर्बिटल, ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। C ट्रिपल एसीटोनाइट्राइल हमारा दिखाता है, एसीटोनाइट्राइल अगर हम देखें तो ये हमारा हाइपर कंजुगेशन दिखाता है, एसीटोनाइट्राइल exhibit hyper conjugations, ठीक है। यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N वाला जो सिस्टम है वो हमारा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। जैसे कि हमारे पास ये सिस्टम है C H H H, ठीक है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड है, लोन पेयर इसके पास मौजूद है। तो इसका अगर हम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा, ठीक है। एक ये बनाएगा,
इसका अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये इस तरह से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। तो कैसे कैसे बनाएगा इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, एक तो पहला ये बनेगा कि H C H H स्टार H प्लस, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड N माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस का मतलब 2 लोन पेयर डाल दो आप इस तरह से। ठीक उसी तरह इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो दूसरा वाला ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसमें H ऐसे H प्लस ले लीजिए, C H H H, और ये फाइनली हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हमको एक और स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं आप। ये हो गया, ये हो गया H C H H प्लस C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड लोन पेयर। तो इस तरह से सिंगल एडजॉइंट एसीटोन जो हमारा हाइपर कंजुगेशन शो करता है, लेकिन C डबल बॉन्ड और अल्काइन हमारा शो नहीं करता ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ पाई ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग एक सिस्टम पढ़ेंगे कि इन अल्कीन हाइपर कंजुगेशन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं द 2 इफेक्ट्स। ठीक है, इन अल्कीन हाइपर कंजुगेशन को हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन अल्कीन में क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन 2 तरीके का होता है। एक पहला जो होता है हाइपर कंजुगेशन वो प्लस H इफेक्ट होता है, और दूसरा जो हमारा शो करता है वो माइनस H इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो प्लस H इफेक्ट और माइनस H इफेक्ट हमको अल्कीन में देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो प्लस H इफेक्ट क्या होता है, अगर if carbon bears negative charge, carbon bears a negative charge, और यहाँ पे क्या है, if carbon bears positive charge, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हमारा सिस्टम जो है अल्कीन सिस्टम में अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो वो माइनस H इफेक्ट दिखाएगा। अगर कार्बन बियर्स करा नेगेटिव चार्ज तो ये प्लस H इफेक्ट दिखाएगा। तो हम लोग अल्कीन सिस्टम में प्लस H और प्लस माइनस H पढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH H, और ये हमारे पास सिस्टम है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, एक सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और फाइनली यहाँ पर क्रिएट करेगा नेगेटिव। अगर कार्बन बियर्स कर रहा है नेगेटिव चार्ज देन इट इज माइनस H इफेक्ट। तो हम लोग इसका जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, H C H प्लस, ठीक है, डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। तो यहाँ पर जो कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर ये जो CH3 है वो कैसा बिहेव कर रहा है, प्लस H इफेक्ट दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, प्लस H इफेक्ट दिखा रहा है। तो CH3 जो है हमारा प्लस H इफेक्ट दिखा रहा है। CH3 हमारा प्लस H इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह अगर हमारे कार्बन में अगर ये हमारे पास कार्बन है, अगर सपोज कीजिए कि ये कार्बन है और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है या क्लोरीन लगा हुआ है, या आप कोई हैलोजन ले लीजिए, सीधा X लिखिए, यहाँ पर X, कोई अगर X लगा हुआ है, यहाँ पर X, यहाँ पर X, यहाँ पर X इज व्हाट, हैलोजन। ये हैलोजन अगर ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पर, और ये जो सिस्टम है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेवलप करेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन जो है वो कार्बन एटम से ज़्यादा है।
जैसे ही कार्बन एटम से ज़्यादा होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो फाइनल जो कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा इसका वो कैसा बनेगा, x और यहाँ पर x माइनस है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ शिफ्ट करेगा ताकि कार्बन का जो है 4 बॉन्ड बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और ये जो सिस्टम है, ये जो पाई अगर यहाँ पर शिफ्ट कर गया है, ये पाई अगर यहाँ शिफ्ट कर गया है तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनने के बाद तो यहाँ पर CH आएगा और यहाँ पर फाइनली डेवलप हो जाएगा CH2 प्लस, ठीक है। ये CH2 प्लस है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके वहाँ गया है, तो यहाँ पर CH2 प्लस डेवलप हो जाएगा। तो क्या हुआ, हेलोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर X माइनस डेवलप होगा, X माइनस, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कार्बन के पास क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस H इफेक्ट। तो यहाँ फाइनली हम जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आप CH3 देख रहे हैं, ये CH3 जो देख रहे हैं, ये फाइनली क्या कर रहा है, CH3 हमारा माइनस H इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका CH3 था, ये जो देख रहे थे CH3, तो ये क्या शो कर रहा था, ये प्लस H इफेक्ट शो कर रहा था। और CH3 हमारा क्या कर रहा है, माइनस H इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, तो माइनस H इफेक्ट शो कर रहा है ये। तो फाइनली हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है हाइपर कंजुगेशंस। ठीक है, तो ये था हमारा अल्कीन के अंदर प्लस H इफेक्ट और माइनस H इफेक्ट। प्लस H इफेक्ट क्या होता है, अगर कार्बन बियर कर रहा है नेगेटिव चार्ज तो we say it is showing a plus H effect. If carbon is bearing a positive charge, then we say it is showing minus H effect. With this, we will start a question solving session. हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ये अल्कीन है, अल्कीन सिस्टम है, CH3 C कार्बोकटायन, ये हमारे पास CH और ये डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास 2 सिस्टम आ गया, एक CH2 वाला सिस्टम आ गया, एक कार्बोकटायन वाला सिस्टम आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सिस्टम के आगे ये कार्बन क्या है, sp2 है, तो ये तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। इस सिस्टम के बगल वाला देखिए, ये sp3 कार्बन है, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका टोटल HCS कितना बनेगा, इसका 3 HCS बनेगा, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 3 बनेगा। इस सिस्टम के बगल में जो कार्बोकटायन है वो sp2 है, और कार्बोकटायन के बगल में जो है CH3 वो sp3 है, और उसके पास 3 अल्फा H है। जब 3 अल्फा H है तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। क्वेश्चंस बनाने के पहले हम लोग को 2 बेसिक कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, 2 बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। पहला बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि जिसका नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। जिसका अल्फा H ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। दूसरी बात कि अगर हम लोगों ने 2 इफेक्ट पढ़ा, एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहले प्रियोरिटीज में कौन जाएगा, पहले हाइपर कंजुगेशन जाएगा, देन विल गिव प्रियोरिटी टू इंडक्टिव इफेक्ट। अगर दोनों में, एक में हाइपर कंजुगेशन भी लगा हुआ है, एक में इंडक्टिव लगा हुआ है, तो इंडक्टिव डोमिनेट करेगा अगर अल्फा H सेम है तो। अगर अल्फा H सेम है तो वी गो बाय इंडक्टिव इफेक्ट। लिख देते हैं कि इफ अल्फा H इज सेम देन गो बाय इंडक्टिव इफेक्ट। अगर क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, देन गो बाय इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट,
ठीक है। तो विद दिस नोट वी विल लर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये कार्बोकैटायन हमारे पास, दूसरा कार्बोकैटायन हमारे पास, तीसरा कार्बोकैटायन हमारे पास, यहाँ पर प्लस है, एक में यहाँ प्लस है, एक में यहाँ प्लस है। तो चलिए लगाते हैं। ये हमारे पास सिस्टम है। इस सिस्टम से कितना अल्फा कार्बन है? एक अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन। यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है भाई? तीन अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन? तीन अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन। ये सिस्टम है हमारे पास। ये तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये सिस्टम है, इसके बाद दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो फाइनली कितना हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो गया? तीन तो छः, आठ अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर हमारे पास तीन चार अल्फा हाइड्रोजन और एक हमारे पास दो अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा? जिसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो पहला का ज़्यादा होगा, फिर दूसरे का, इसका ज़्यादा। तो अगर हम इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, तो वी राइट 1 greater than 2 greater than 3. With this note, we will again proceed with the next question. इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, ठीक है। इस पर हम लोगों ने कोई इफेक्ट लगा दिया है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने कार्बोकैटायन लगाया और इस पर लगा दिया इस पर लगा दिया CN, ठीक है, CN लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, इसके बाद कितना अल्फा हाइड्रोजन है? तीन अल्फा, दो, तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर दो। तो यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक उसी तरह ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी 8 अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है। तो मैंने क्या लिखाया था कि अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम आ रहा है तो वी विल गो बाय प्लस आई इफेक्ट। तो देन गो बाय प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाता है। इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो इस सवाल में देखिए यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन, बट वी हैव ए ग्रुप हियर विच इज शोइंग ए माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? स्टेबिलिटी को घटा देगा, स्टेबिलिटी विल डिक्रीज एंड फाइनली दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, ठीक है। तो अगर हम इसको A लें और इसको B लें तो A इज मोर स्टेबल देन B, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाता है, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये तो कार्बोकैटायन का देखा हम लोगों ने। उसी तरह अल्कीन में भी हमारा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। तो चलिए लगाते हैं अल्कीन का क्वेश्चन। चलिए ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो ये हमारे पास पहला सवाल, ठीक है, यहाँ पर ये अल्कीन सिस्टम है। दूसरा हमारे पास है ये दूसरा सिस्टम है, ये हमारे पास तीसरा है और ये हमारे पास चौथा है। इस तरह से इसको हम लोग ले लेते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D। अब चलिए हम लोग सिस्टम्स को देखते हैं। ये हमारे पास सिस्टम है। इस सिस्टम से अटैच कितना कार्बन है? तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ? 12 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक उसी तरह ये सिस्टम है हमारे पास। इस सिस्टम के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? तीन अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, और ये हमारे पास तीन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारे पास सिस्टम है, इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन,
यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह ये सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ए का होगा क्योंकि उसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन, देन बी, देन वी हैव सी, उसके पास 6 है, देन फाइनली वी हैव डी। ठीक है, तो इस तरह से स्टेबिलिटी कैसे अल्कीन में देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। जिसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ही स्टेबल होगा। एंड फाइनली वी हैव अनदर क्वेश्चन विद अस। अगर हमारे पास ये है, इस तरह का अल्कीन बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपीन बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम लोग अल्फा हाइड्रोजन इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। चलिए अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं इसका। ये सिस्टम है हमारे पास, इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये सिस्टम है, सिस्टम के बगल में जो कार्बन होता है, ये इस पर, इसके पास जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है वो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो डी तो कम होने वाला है, सबसे पहले डी तो सबसे कम होने वाला है। ठीक है, तो डी को तो मैं आखिरी में ही लिखता हूँ। ठीक है, अब चलते एबीसी में। एबीसी में क्या हो रहा है कि सबके पास 6 अल्फा एच है। ये जो है हमारे पास, ये ट्रांस अल्कीन है और ये सिस अल्कीन है। ट्रांस मतलब इसके, ये जो सिस्टम है, ये डबल बॉन्ड के सिस्टम के अपोजिट साइड में जो लगा हुआ है, ये कार्बन जो लगा हुआ है और ये जो कार्बन लगा हुआ है, ये बिल्कुल अपोजिट साइड लगा हुआ है। तो अपोजिट होने के कारण क्या होगा, रिपल्शन कम होगा और इसका नाम होता है ट्रांस अल्कीन। क्या होता है, ट्रांस अल्कीन। और यहाँ पर देखिए, ये ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है, ये ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, रिपल्सन देगा और इसका नाम होता है सिस अल्कीन। और हम लोग स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ट्रांस अल्कीन का ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें रिपल्सन नहीं होता है, क्योंकि अपोजिट वे में इस तरह से लैडर की तरह रहता है वो। लेकिन सिस अल्कीन में दोनों एक तरफ होने से क्या हो रहा है कि वो आपस में रिपल्शन मार रहा है। तो ट्रांस अल्कीन जो होता है वो मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन होता है। ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन। तो अब तो इस दोनों में हो गया कि बी और सी में बी सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम ए की बात करें तो ए के पास क्या लग रहा है, ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है। ये क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है इसको, अल्कीन की स्टेबिलिटी को और बढ़ा रहा है। ठीक है, अल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, और इसमें देखिए कि एक ही कार्बन पर 2 प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। 2 प्लस आई इफेक्ट लगने से क्या होता है कि स्टेबिलिटी इसका सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन को देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस कार्बन पर आपको 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप, और इस कार्बन पर देखिए ये सिस्टम पर मिथाइल ग्रुप अलग अलग लगा हुआ है। यहाँ पर एक ही सिस्टम पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ही कार्बन पर। यहाँ पर डिफरेंट कार्बन पर अलग अलग मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जो लगा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अलग अलग कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो यहाँ पर ट्रांस अल्कीन और सिस अल्कीन में देखिए अलग अलग मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो वो लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए। तो ए विल बी मोर स्टेबल। तो हम कह सकते हैं कि ए जो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ए विल बी मोर स्टेबल एंड देन विल कम, ट्रांस अल्कीन ज़्यादा होता है देन सिस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन, देन कम बी, देन वी हैव सी। ए क्यों ज़्यादा है, बिकॉज एक ही कार्बन पर इन वन कार्बन मिथाइल ग्रुप increases the stability as compared to methyl group attached to
different carbon. In one carbon, methyl group increases the stability. In one carbon, methyl group increases the stability as compared to methyl group attached to trans and cis alkene. Trans and cis alkene. ट्रांस और सिस अल्कीन में जो मिथाइल ग्रुप अटैच है वो अलग अलग लगा हुआ है, लेकिन इन आइसोप्रोपीन में एक ही कार्बन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इन वन कार्बन मिथाइल ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप अटैच टू ट्रांस एंड सिस अल्कीन। तो इसीलिए ए इज मोर स्टेबल देन बी एंड सी, ठीक है। भावना को समझ गए कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। इसी तरह हमारे पास एक फ्री रेडिकल का होता है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फ्री रेडिकल का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्री रेडिकल का, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है, एक सपोज कि यहाँ पर फ्री रेडिकल है। तो इस सिस्टम से अटैच जो कार्बन है, इस सिस्टम से अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और यहाँ पर कितना है 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस सिस्टम से अटैच जो कार्बन है यहाँ पर कितना है 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 5 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन 2 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इज व्हाट हाइपर कंजुगेशन इज। हमने पूरा डेप्थ में लेके चला गया हूँ और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जेई मेन और नीट के लिए। अब बाकी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और आइडिया अच्छे से आ जाएगा। सो दोज हु लाइक्ड माय वीडियोस प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और फाइनली अगर आपको कोर्स कंटेंट का डिटेल्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर जो मेरे स्लाइड के पहले में दिया हुआ है, और वैसे भी मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूँ। And if someone is interested, please ping me. I will be there to help you out. Thank you so much for watching my session.